We're going to start with interference by region of amplitude. For example, हमने last time we studied the Huygens wavelet theory. ठीक है? Huygens wavelet theory. ठीक है? So, but now in this class we are going to use जो हमारी Huygens wavelet theory है, that every wavefront उसका एक फॉरवर्ड वेव फ्रंट होता है, बैकवर्ड वेव फ्रंट होता है, एंड ओनली फॉरवर्ड वेव फ्रंट्स विल कंट्रीब्यूट टू द इंटरफेरेंस. ठीक है, जिसकी वजह से हम डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करते हैं ऑन द स्क्रीन. ठीक है, एंड डिफ्रैक्शन में भी एक तो है कि जो पार्ट डिफरेंस है, इट्स इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स और हाफ इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स. ठीक है, primary and secondary wavelets they interfere in a manner such that we are able to produce the different bright maxima, first, second and so on and so forth. उसका फिर इंटेंसिटी वीक होती जाता है. ठीक है, अब वही चीज़ हम we are going to study. अब जो इंटरफेरोमेट्री है, जो नॉर्मली हम स्टडी करते हैं these things in your earlier class आपने पढ़ा होगा something called सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. पढ़ा है? So superposition principle क्या है? What's superposition principle? So it's two waves of a given intensity. If they are going to interfere, जो resultant wave होगी उसका amplitude, so it will get added up, है ना? There may be two waves or there may be more than two waves. जैसे y is equal to a cos omega t, जिस तरह y2 is equal to a2 cos of omega t. So the net होगा, it will be y1 plus sum of. So it may be two waves or it may be more than two waves, है कि नहीं? So in the same way, what we are going to study is basically we are going to study basically diffraction, but we are going to study interference. Interference दो तरीके की होती हैं. एक interference by division of amplitude. In our today's class, we are going to study basically interference by interference. एक interference है. We are going to normally study division of wavelength. So division of wave front क्या होगा? कोई भी wave front है, how the wave front will evolve in space. ठीक है, single wave front, double wave front, उसका evolution in space time क्या होगा? ठीक है, directly we are going to see. हम normally we see जो water waves में, अगर water waves में हम pebble डालते हैं तो ripples get created है. इसमें अपना एक crest होगा, फिर trough होगा, फिर crest होगा. ठीक है, इसमें there are two or more than two interfering waves. अगर तो पॉन्ड में हमारे पास will have a disturbance at 2 points. ठीक है, तो दो पॉइंट्स पे डिस्टर्बेंस और इंटरफेरेंस will be created. How those interference के साथ when the wave propagates in space नहीं, for example water waves. ठीक है, तो at some point in time these ripples will आपस में they will interfere with each other, है कि नहीं? At some point in time they will produce crusts or they will produce. So they might have a constructive interference or they might have a destructive interference. Where the interference is constructive, it will be maximum amplitude हो जाएगा. जहाँ destructive होगा, अब normally you give an example of water waves, but हम normally भी वहाँ crust ट्रफ बनते हैं, but हम इसलिए light is going to reflect on those and उसका हम interference pattern कहाँ पर देखते हैं? Screen पे देखते हैं. ठीक है, एंड दैट इंटरफेरेंस की एक पर्टिकुलर केस डिफ्रैक्शन भी. डिफ्रैक्शन इज अ केस ऑफ इंटरफेरेंस वेयर प्राइमरी वेवलेट्स एंड सेकेंडरी वेवलेट्स इंटरफेयर इन अ मैनर व्हिच आर इंटीग्रल नंबर ऑफ सर्टेन वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 और लैम्डा प्लस 1 बाय 2 इवन और ऑड, उस हिसाब से हमारे पास आएगा. सो इन द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट what we are going to observe is that not only two wavefronts but more than two wavefronts they are going to
interfere in a manner which will produce for us the diffraction pattern which we are going to observe on the screen. This is the one way of doing the diffraction. The another thing is जिसको हम कहते हैं division interference due to, we are going to study this one, ठीक है, but still there is another interference, उसको हम कहते हैं interference due to the division of amplitudes. amplitudes. इसमें क्या होगा? So we are not going to concentrate on it, but for the definition of it, definition ये है कि division of amplitudes में है कि जैसे कोई भी वहाँ से incoming light आएगी तो ये एक reflecting mirror होगा, ठीक है, इसको एक मिरर से आएगा वो दूसरे पे रिफ्लेक्ट करेगा, सो डायरेक्ट नहीं होगा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन. लाइट विल कम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, 2 or more than 2 sources, एंड दे आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन मेनी मिरर्स और लेंसेज. फिर वहाँ से जब रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी या रिफ्लेक्शन होगी या रिफ्लेक्शन होगी, तब जाके इंटरफेरेंस पैटर्न हम ऑब्जर्व करेंगे और डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे. यहाँ डायरेक्टली वी सी कि डिवीजन ऑफ वेव, ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हम करते हैं, तो इसमें डायरेक्टली हम वी आर सीइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेवलेट्स इन हाउ दे जस्ट रिकम्बाइन टू प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन पैटर्न. यहाँ इट्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द इनकमिंग सो लाइट फ्रॉम सिंगल स्क्रीन, सिंगल मिरर, मल्टीपल मिरर्स, एंड उसके बाद वो हम डिफ्रैक्शन करते हैं. यहाँ तक ठीक है ना? तो कुछ पूछता तो नहीं. अब इसमें भी हम जो हमारी क्लास है, सो इसमें भी इंटरफेरेंस भी एक टू बीम इंटरफेरोमेट्री और मल्टी बीम इंटरफेरोमेट्री. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि अगर हमारे पास 2 बीम्स ऑफ सोर्सेज होंगे, 2 बीम्स दे विल इंटरफेयर एंड दे विल प्रोड्यूस दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है. और यू कैन हैव नॉट ओनली 2 बीम्स, दे कैन बी मल्टीपल बीम्स, और इट कैन नॉट बी टू 1 सोर्स और 2 सोर्स, देयर कैन बी मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है. सो वी आर नॉट गोइंग टू, इस पर हम वी आर नॉट गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन दिस वन, वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन टू बीम इंटरफेरोमेट्री. मीन्स वी आर गोइंग टू टेक 2 सोर्सेज, ठीक है. हम नॉर्मली 2 सोर्सेज में अगर हम ट्रैवलिंग वेव लेंगे, साउंड वेव लेंगे, ठीक है ना, साउंड वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें प्रोड्यूस होता है रेयरर मीडियम, फिर डेंस मीडियम, फिर ऐसी है ना साउंड वेव ऐसी ट्रैवल करती है. या वाटर वेव्स में हम करते हैं, मतलब क्रस्ट एंड ट्रफ की एनालॉजी देते हैं हम. नॉर्मली वाटर वेव्स वी आर टेकिंग देम एज ट्रांसवर्स वेव, है तो नहीं वो ट्रांसवर्स वेव, बट उनका प्रोपिगेशन जो होता है दैट इज ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स मीन सीध में, ऐसे ना, यहाँ से आप डिस्टर्बेंस पॉइंट में डालेंगे तो वेव विल ट्रैवल लाइक दिस, है ना, सीधे जाती है ना, सो मुझे इट्स ट्रांसवर्स. अब बेसिकली हम हमारे पास जो लाइट सोर्स है ना, थोड़ा इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेट करने पड़ते हैं लैब में, क्योंकि लाइट इज इनविजिबल, ठीक है. So you are directly हम observe, so we are using indirect methods how we are going to realize interference or diffraction on a screen, ठीक है. तो हम नॉर्मली अगर हम 2 सोर्सेज लेंगे, 2 सोर्सेज ऑफ लाइट लेंगे ऐसे, ठीक है, तो अब वो भी आपस में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है. तो वाटर में तो आप सीधे देखते हैं, पॉन्ड में आप रिपल देखिए, यू कैन एक्सप्लेन किए, जो ऊपर गया ये क्रस्ट है, जो नीचे गए वो ट्रफ है, उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गई, उसमें डिस्ट्रक्टिव 2 वेव्स आ गई, दे सुपरपोज एग्जैक्टली, तो एनर्जी का मैक्सिमम हो गया, तो उसी में, ठीक है, डिप आ गया, तो यू कैन एक्सप्लेन. अब थोड़ा उसमें इट बिकम बिट कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यू हैव टू सोर्सेज, 2 लाइट सोर्सेज व्हिच आर इमिटिंग, ठीक है. हाउ द लाइट वेव्स आर गोइंग टू इंटरफेयर, ठीक है, and how we are going to observe the diffraction pattern on the screen, how we are going to observe the primary and secondary wavelet ka interference will be in a manner which will produce. So what we are going to do, we just try to, इसका है, if even though the example में भी होना चाहिए ना, अगर हमारे पास 2 लाइट सोर्स भी होने चाहिए, वो भी कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए,
और एक ही वेवलेंथ की होनी चाहिए, ठीक है। एक ही तब हम अगर उनमें भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डिफरेंट होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी मस्त, ठीक है। सो अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक वाटर लेंगे, वाटर में दो, एक पॉइंट पे ऐसे, दूसरे दो पॉइंट्स पे हम वी आर गोइंग टू स्लाइटली इसको क्या नीडल के साथ क्या करेंगे, स्लाइटली डिस्टर्बेंस करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे साइमल्टेनियसली एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, सो दैट द रिपल्स विल गेट प्रोड्यूस्ड, क्रस्ट्स एंड वी आर गोइंग टू सी कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा एंड कहाँ कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इफ इट्स इंटीग्रल नंबर ऑफ λ/2 और 2n+1/λ/2 फ्रॉम दीज टू सोर्सेज, अगर दो वेव्स आएंगे सो वी विल टेक, जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से, इन रिपल्स से, उसका हम अक्स देखेंगे ना, विल सी इट्स इंप्रेशन ऑन द स्क्रीन, दैट विल गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू वेव इंटरफेरेंस, दो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं एज इफ दे आर कमिंग, दे आर इंटरफेयरिंग एंड उनका सुपरपोजिशन होता है, एट सम पॉइंट देयर इज ए कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, एट अदर पॉइंट्स देयर इज ए, एंड दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू आवर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट विल गिव अस इंटरफेरेंस कैसे होता है, ठीक है, दो सोर्सेज का इंटरफेरेंस कैसे होता है, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, थोड़ा सा मैं इसको ये डायग्राम डालूंगा, फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ द वाटर पे इफ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, so you can also relate this to जो interference है, इसमें आप for example the analogy is normally superposition में हम है ना जो standing wave लेते हैं ऐसी रस्सी है ना, हम नॉर्मली अगर स्टैंडिंग वेव लेते हैं, यहाँ से वेव आएगी फिर वापस आएगी, है ना, यहाँ से डिस्टर्बेंस आएगा फिर वापस डिस्टर्बेंस आएगा, एट सम पॉइंट दे विल इंटरैक्ट, तो फिर नोड्स एंड एंटी नोड्स बनते हैं, जो आपने पढ़ा स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग मैकेनिकल, now you are not taking that analogy, तो उसमें फिर एनर्जी भी चेंज होती रहती है, गिवन स्ट्रिंग क्या है, now you are going to change that analogy थोड़ा सा वाटर वेव की, वाटर वेव में फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इसको फॉर एग्जांपल ऐसे, so we are going to take you can imagine this is a plane, ये water waves दो sources या दो points हैं in space, ये S1 है source, ये क्या है S1, so 2 points water में needles हैं, यहाँ भी needle produce करेंगे, यहाँ भी needle, and slightly हम इसको at simultaneous times, इस पे भी we are going to prick the surface of the water, इसको भी surface, so ripples will get produced from this point also, ठीक है। इसका फिर evolution हम देखेंगे कैसे होगा in space time, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को सिर्फ करेंगे रिपल, इसको नहीं करेंगे तो the water waves इसका जाएगा amplitude, हाँ, मगर अगर इसका भी simultaneously उसी वक्त करेंगे, ठीक है, विदाउट फेज डिफरेंस, सो एट सम पॉइंट इन टाइम दे आर गोइंग टू कम एंड इंटरफेयर, जैसे ये जब ये यहाँ तक प्रोपिगेट करेगी, इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के साथ या इसका ट्रफ, ठीक है, सो अब अगर आप फेज डिफरेंस भी डेवलप कर सकते हैं एंड विल सी हाउ थिंग्स विल इवॉल्व, तो इसमें हम एग्जैक्टली मेकिंग थोड़ा सा इसको बीच में रखेंगे एग्जैक्टली, so we assume this is a plane of propagation, यहाँ पर somehow they are going to meet the waves which are produced from this one, ठीक है, तो इसका पहले ये क्रस्ट आएगा, अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस इधर उधर करेंगे तो मे बी फर्स्ट वाला ये आएगा, इसका थ्रू इसका, देन वी कैन हैव क्राफ्ट हम ऐसे ठीक है, अगेन यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग अगेन हियर आल्सो, ठीक है। अब इसमें ये है कि हाँ
Now you can have cross ऐसे यहाँ से, ठीक है, फिर ऐसे, इसी तरह आप यहाँ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन इट, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ट्रफ, ठीक, एंड द वेव्स आर गोइंग टू प्रोपगेट, ये भी प्रोपगेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल द ट्रफ, यहाँ का ट्रफ यहाँ की क्रस्ट के साथ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एट सम पॉइंट इट्स गोइंग टू इंटरसेक्ट, इसका ये क्रस्ट इसके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इसका ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वेव फ्रंट एंड सो इंटरफेरेंस फ्रॉम दिस वेव एंड दिस वेव, दोनों वेव्स का हम एम्पलीट्यूड स्टडी करेंगे एट डिफरेंट पॉइंट्स। अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट रखा तो इनका आपस में इंटरफेरेंस क्या होगा इन दिस प्लेन ऑफ प्रोपिगेशन, क्या इंटरफेरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल एट सम पॉइंट इन टाइम बी रखेंगे, इसका नाम सी रखेंगे, ए रखेंगे, तो these are, so what we are going to do, we are going to do for example इसका मैथमेटिकल एनालिसिस सिंपलेस्ट, अगर हम कोई भी वेव है इसका फॉर एग्जाम्पल y है, so we can write it as y1 is equal to cos of omega t, ठीक है, y2 को हम रखेंगे नाम a cos omega t plus phi, if they are of the same phase तो 0 phi 0, if एक फेज वेव का मतलब इट विल स्टार्ट एट अ पॉइंट थोड़ा सा आगे या पीछे, वी कैन इंक्रीज द फैक्टर ऑफ phi, ठीक है। सो इफ द वेव स्टार्ट एट साइमल्टेनियस पॉइंट्स देन a by 2 is equal to a cos omega t, नाउ वी आर गोइंग टू सिंपली इंटरफेयर, है ना, एंड वी विल हैव यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो पहले हमने कहा। सो वंस वी आर गोइंग टू डू इट, तो इसका सिंपल आएगा। फॉर एग्जाम्पल तो इस बार इसका सोर्स S1 है, S2 है, सो इफ द फेज इज नॉट देयर तो इट विल y प्लस y2 क्या आएगा, a twice a cos of omega t, ना, सिंपली दे विल ऐड अप इफ द फेज डिफरेंस इज नॉट देयर, ठीक है, द एम्पलीट्यूड्स विल सिंपली ऐड अप, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक का फेज रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल t is equal to a time period t by 4, so at time t is equal, अगर ये टाइम पीरियड है ना, इट्स t by 4 रखेंगे इस टाइम पर, 1/4 तो टाइम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/4 न्यू, है ना, टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, ये ना t is equal to 1/न्यू, और यू कैन ऑल्सो राइट इट, अगर अब इसको ओमेगा टी यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, टी के पहले लिखोगे t by 4 तो क्या आएगा, शाबाश, इट विल कम आउट टू बी, और इट विल कम आउट टू बी y by, इसको आप ऐसे लिख सकते। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हियर t के बदले, सो इट विल बी t by 2 by ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, ये पाई by 2 आएगा, तो cos of पाई by 2 क्या है, 0 आएगा ना। सो एट टाइम t is equal to t by 4 when these two waves will interfere, जब टाइम 1/4 अगर ये आएगा, so there you will observe it sort of destructive interference because amplitude will be 0, this will be 0, cos of 0, so it will be, the whole factor will come out to be 0. So at some, after some point t is equal to t by 4 you will observe a destructive interference, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड नेट आएगा एट दिस पॉइंट आफ्टर t is equal to t pi by 4।
So you can also have different times. So in the same way अब ये है कि जो STB फॉर एग्जाम्पल अगर ये है यहाँ पर हम ये वाला पॉइंट हम लें तो ये STB ये S1B है ना यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से ये थोड़ा सा इसका डिस्टेंस एक्स्ट्रा आप देखते हैं ना है ना. सो यू विल जो हम कर रहे थे यंगस्टर्स एक्सपेरिमेंट में या डिफ्रैक्शन में सो यू आर गोइंग टू सी द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट रीच दिस पॉइंट है ना. द सेम वे द वेव स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट रीच दिस पॉइंट. सो वी आर गोइंग टू सी इनका पाथ डिफरेंस क्या है. एंड पाथ डिफरेंस इफ इट इज एन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ और इट इज अ हाफ इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स. सो दैट विल गिव अस जो सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स हैं जो हमारे पास कहाँ पर मैक्सिमम इंटरफेरेंस आ गया और कहाँ पर वेयर द कंट्रीब्यूशंस विल ऐड अप एंड वेयर द कंट्रीब्यूशंस विल कैंसिल. ठीक है ना. ठीक है. जहाँ वो ऐड अप होता था वहाँ हम ब्राइट इंटेंसिटी देखते थे, जहाँ कैंसिल होता था वहाँ हम डार्क स्पॉट देखते थे. ठीक है. बेसिकली हम लाइट वेव्स बट हम इसका बेसिकली वी सी वाटर वेव्स पे भी जब लाइट रिफ्लेक्ट होते स्क्रीन पे देखेंगे. ठीक है. वी आर इनडायरेक्टली स्टडिंग लाइट वाया वाटर वेव्स. ठीक है. सो दिस एनालॉजी वी आर टेकिंग. तो यू कैन सी इट. सो अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल S2B माइनस S1B फॉर एग्जाम्पल S2B minus S1B. S2B minus S1B. So it will come out to be. So it can be a half integral number of wavelengths, or it can be. अब ये यहाँ पर हमें T रखा T/4. Now we can also write T is equal to T/2. ठीक है. तो अगर T/2 रखेंगे तो क्या आएगा. यहाँ पर आएगा cos of pi, cos of 2pi, cos of 3pi, cos of pi is equal to -1, 2pi is equal to -1 है ना. -1 + 1 -1 प्लस. ठीक है. सो ये 4 के लिए हमारे पास आ गया वैल्यू 0 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इफ इट इज T/2 इट इज pi ये T/2 के लिए it will come out to be constructive interference. The contributions will simply add up. ठीक है. So you will have different values of pi, 2pi, 3pi. उस हिसाब से cos of pi is equal to -1, 2 -2, so on and so forth, which will correspond to the constructive interference. पहला वाला था destructive interference, and दूसरा वाला था constructive. Basically superposition of two waves. ठीक है. So which will correspond to different जो हमारे पास या स्क्रीन across. So it will again, so we'll write it y1 is equal to a cos omega t, y2 is equal to दूसरे वाले का. So अगर ये आएगा तो ये आएगा माइनस में आएगा ना डिफरेंट फैक्टर्स. इसी तरह y is equal to y1 plus y2 जो भी आएगा. ठीक है. अब हमारे पास we get the way we have seen it. अब हमारे पास सिर्फ दो फैक्टर्स आएंगे. We just see जो हमारे पास will get जो S1C एंड S2 इसी तरह हम इसका भी ले सकते हैं. ये B का लिया आप C का ले सकते हैं. सो यू कैन हैव S2C minus S1C. It can be an integral number of wavelengths lambda. और in the same way you can take different points. यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर कोई फॉर एग्जाम्पल पॉइंट लिखते हैं P. It's not necessary we can take here or here. So any point आप अगर लेंगे दो वेव्स अगर प्रोपिगेट करते हैं उनका सुपरपोजिशन एट एनी पॉइंट इज y is equal to a1 cos omega t प्लस y2 is equal to a cos omega t प्लस phi. फेज एंगल क्या है. ठीक है. तो उसका सुपरपोजिशन हम देखें हाउ इट विल इवॉल्व इन स्पेस आफ्टर टाइम. कुछ टाइम π/4 π/8 पाई. ठीक है. क्या आएगा. तो अगर आप कोई भी पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट लेंगे P तो फॉर्म जो नॉर्मली है डिफरेंस तो पहले हमने B पॉइंट लिया फिर C पॉइंट लिया. नाउ इफ वी टेक द पॉइंट P तो एट एनी पॉइंट P क्या आएगा वो वाला S2P minus S1P. S2P माइनस नहीं करेंगे. so अगर डिफरेंस ऑफ दीज टू कैन बी ईदर इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स. ठीक है. एंड और इट कैन बी
it can be half integral number of variables n plus half. Okay. So if it is the former, we have a constructive interference. If it is the later, we will have a destructive interference. So in a simple sense, we have taken analogy of how we have taken how two sources, okay, which might have some how two sources of normally water wave के example ली, but we are seeing the reflection of those water waves on the screen, light का. How two sources, if they are, हमने दो needles को लिया, normally हमने simultaneously उनको slightly disturb किया, and वहाँ से जो waves produce होगी, उनका evolution हमने space में देखा. कहाँ पर constructive interference हो रहा है, कहाँ पर destructive interference हो रहा है. So this is what we have done. So actually, in space, if we talk about the light and talk about interference, it is 3D. हाँ हाँ, ये तो वही तो है ना, that's the point. तो फिर जैसे नॉर्मली हम लेते हैं ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ स्क्वायर लेना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू. तो हम फिर यहाँ लेते हैं, जैसे आपने स्पेशल रिलेटिविटी में पढ़ा होगा, v स्क्वायर p स्क्वायर स्फेरिकल वेव फ्रंट. फिर हमको एक पैरामीटर, एक डायमेंशन ऐड करना पड़ेगा. वो थोड़ा फिर हम जब इक्वेशन लेते हैं ना, d2x by dx स्क्वायर, d2y by dy स्क्वायर प्लस d2y by dz स्क्वायर. तो यहाँ we are taking a very simple way, because otherwise two dimensional way भी नहीं, इसमें भी थोड़ा होगा ना. You cannot restrict it on the board. It's an approximation. It's an approximation. We can't get this expression. तो नहीं. We have to take the points out of the z-axis. And we have minus j-axis or j-axis. And we have to t-axis or minus j-axis. हाँ, लेकिन वही ना, नेचर इज टू कॉम्प्लिकेटेड. अब ये हमारी अपने आसानी के लिए, मैंने पिछली बार भी कहा ना, इन फिजिक्स वी स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स. जब सिंपल थिंग्स को फिर कॉम्प्लिकेटेड पे वन स्टार्ट विद वन बॉडी प्रॉब्लम, फिर टू बॉडी प्रॉब्लम, फिर थ्री बॉडी प्रॉब्लम. इस तरह वो स्टार्ट विद फ्रिक्शनलेस सरफेस. वो नहीं, यू कैन नॉट इमेजिन फ्रिक्शनलेस सरफेस. इस तरह हमने कल डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व किया कि वी डिड नॉट एज्यूम, मतलब परफेक्ट, अगर कॉर्पस्कुलर फाइट परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन भी नहीं होता है. ठीक है, तो वो फैक्टर्स है इनटू कंसिडरेशन. तो फिर हम वो वाले सिस्टम भी, जब हम आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा होगा, फिर हम वहाँ डैम्पिंग टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो सिस्टम को थोड़ा फिर कॉम्प्लिकेटेड होता है. वो इंट्रोड्यूस वन डैम्पिंग टर्म, उसमें फ्रिक्शन टर्म भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या कोई फोर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स. So we begin with two-dimensional wave. We can go for three-dimensional waves. We can go for coherent sources. Then we can also go for non-coherent sources. We can also go for, even though they are coherent sources, उनका time period एक 5 बजे start होगा, दूसरा थोड़ा बाद में start होगा, फिर भी उनका interference होता है. ठीक है, we start with two coherent sources, but we have needles को हमने exact उसी time पे disturb किया. हम इधर उधर करेंगे डिस्टर्ब, तो उसमें फिर दूसरा पैटर्न आएगा. इसलिए हम को चाहिए डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस पैटर्न, सॉरी इंटरफेरेंस पैटर्न हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे स्क्रीन पे. ठीक है, सो अब इसमें एक और चीज़ है, वन थिंग मोर इज दैट, हाँ इसमें वन थिंग मोर इज दैट अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग दैट यू कैन ऑल्सो हैव फॉर एग्जाम्पल कोहेरेंट सोर्सेस. अभी मैंने कहा कोहेरेंट सोर्स अगर होंगे, कोहेरेंस या कोहेरेंट सोर्सेज है ना, टू सोर्सेज व्हिच हैव द सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी, आपने शाइन किया लाइट ना ऐसे दोनों का. तो कोहेरेंट, दो कोहेरेंट सोर्सेज अगर होंगे, उनका एवोल्यूशन स्पेस टाइम कैसे होगा, हाउ दे आर गोइंग टू गेट इंटरफेरेंस पैटर्न हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे दो कोहेरेंट सोर्सेज का. ठीक है, उसमें भी अगेन यू आर गोइंग टू डू द सेम एनालिसिस. y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, दूसरे का है y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई. ठीक है, अब इसमें आप करेंगे y1 प्लस y2. ठीक है, y1 प्लस y2, यहाँ ये करेंगे, a को बाहर निकालेंगे, t भी cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस फाई. ठीक है, अब इसको आप खुद करोगे, cos a प्लस cos b किसके बराबर है, 2 sin a by 2 प्लस, है ना, which will do myself, so it will be basically 2a cos of phi by 2 cos of omega t plus phi.
अब इसका इंटेंसिटी पैटर्न कैसे आएगा, इसका इंटेंसिटी पैटर्न, जब आपने इंटेंसिटी पैटर्न वी ट्राई टू स्टडी ऑन डिफ्रैक्शन, ब्राइट मैक्सिमा के लिए आता था ना I0²/4π, ठीक है, फिर दूसरा ब्राइट स्पॉट पे। सो इन द सेम यू कैन हैव फॉर कोहेरेंट बीम्स, अगर दो कोहेरेंट बीम्स आएंगे उनका इंटरफेरेंस देखिए, एक का ये एम्पलीट्यूड है दूसरे का ये एम्पलीट्यूड है, तो इसका जो इंटेंसिटी पैटर्न आएगा हमारे पास दैट कम्स आउट टू बी I इज इक्वल टू इंटेंसिटी होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड cos स्क्वायर π/2। अगेन जो इसमें ये है ना cos of π/2, फाई का जो फेज एंगल है इट कैन बी पाई, cos of phi is equal to cos of 0 is equal to 1, मतलब अगर ये 2π 4π 6π होगा तो ये cos π आएगा, ये माइनस में ये 1 आएगा, इट विल बी 4I0 सिंपली। और अगर ये π/2 आएगा तो cos phi is equal to 2π 4π आएगा, तो अगर ये π/2 आएगा इसका मतलब phi का 0 आएगा, ये इफ इट भी जो π/2 आएगा π/2 π/4 तो उस हिसाब से फिर ये 0 आएगा। सो इट विल फ्लिप फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द फेज एंगल, फाई क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट जो हमें यहाँ पर किया। और इसमें एक और पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल फाई कैन बी पाई +- 3π 5π सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह फाई कैन बी 2π सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसमें यह है कि कभी कभार ये होता है जो फेज एंगल है ना, ये हम इसको ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जिस तरह आपने पढ़ा होगा ना एसी में कैसे हम करंट को स्टडी करते हैं, है ना। अब कभी कभार ये एंगल विल फ्लक्चुएट फाई, तो उसमें हम क्या करेंगे, विल सी कि इसका एंगल फ्लक्चुएशन कहाँ टाइम से कहाँ तक है, इन गिवन पीरियड क्या है, फिर उसका हम मीन लेते हैं इंटीग्रल का फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। और उसमें टाइम पीरियड हम कैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी आँख का, हमारी आँख का ये है टाइम पीरियड, इसका टाइम है कुछ सेकंड्स, अगर कैमरा है उसका 10-12 सेकंड है, ठीक है, इट मे वैरी, जो अगर ये हमारे पास द फ्लक्चुएशन ऑफ दैट वेरी थिंग इट वैरीज फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम, दो कोहेरेंट सोर्स के लिए, ठीक है। इसमें कि टाइम ऑफ एंगल कैसे हम मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल आई का है 1/10 सेकेंड, कैमरा का है 0.001 सेकेंड, तो cos स्क्वायर π/2 विल वैल्यू बिटवीन 0 and 1, ठीक है। सो नॉर्मली अगर ये इसका मैक्सिमम वैल्यू जो नॉर्मली आता है ये 2I0 है। यू कैन ऑल्सो सी, अब ये इंटीग्रल को हम कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द इंटीग्रल जो हमारे पास है, ये इसका इंटीग्रल है FT, इसको हम नॉर्मली हम ऐसे भी लिखते हैं, FT जो है FT इज इक्वल टू 1/τ - τ/2 cos of FT। So what I'm going to summarize what we have done. What we have done nothing, हमने दो waves को इनका interference देखा, taking the analogy of water waves, and we took that water waves are इनका transverse propagation है, and basically we are studying light waves, maybe we are studying two beam interference by division of wavelength, two beam interferometry है, even though we have a multi-beam interferometry, we take the simplest case, ठीक है। कुछ पूछना है, any question? चलो। So